Good evening and namaskar. What's up Arunachal, a weekly live discussion program jointly presented by DD Arun Prava and Akashvani Itanagar, and I'm your host KD Singh. Every once in a while, we get an opportunity to celebrate individuals whose lives remind us that dedication, perseverance and selfless service never go unnoticed. Today's episode is one such occasion. It is a matter of immense pride for Arunachal Pradesh that one of its distinguished sons has been honored with the prestigious Padma Shri for his outstanding contribution to the society. Joining us today is Padma Shri Techi Gubin sir. Welcome to our studio, sir. We will have a detailed discussion about sir journey of sir, how he achieved. A nation is not held together by borders alone. It is held together by the quiet faith of a people who refuse to let their traditions die. The architect of identity, Techi Gubin, Padma Shri 2026. Born in 1964 in KB, Arunachal Pradesh, he grew up within the traditions of the Nishi tribe, a community deeply rooted in the indigenous Donyi Polo faith. He lost his mother when he was 4 years old. He retreated inwards. He loved to draw, often lost in his own world. Drawing sharpened his observation of the world around him. His journey would take him far beyond his village. He travelled across the country to study architecture at the prestigious Chandigarh College of Architecture, graduating in 1988. Techi Gubin joined the Arunachal Pradesh Public Works Department, eventually rising to become the chief architect of the state. For decades, he helped shape the built landscape of Arunachal, designing housing, planning urban spaces, and guiding public infrastructure. However, he realized that architecture alone was not enough, because the structures that mattered most to him were invisible. They were the cultural foundations of his people. On 3rd April 1999, there was a huge movement of people. That there is loss of culture, loss of faith, loss of identity. And I have observed that there had been large exodus of our people from the indigenous faith. My father was a priest, and they are the caretaker of the people. I thought I should follow my legacy of my father. To spread his message of cultural conservation, he made the time to visit over 90 villages on foot, through areas where there were no roads. His goal was to save the most remote villages. He found that the issue had reached the border areas. Undeterred, he continued with his outreach. Over 4 decades, he built over 600 Donyi Polo cultural centers. In every remote village along India's borders with Tibet, Myanmar and Bhutan, he raised the Indian tricolour, affirming the presence, dignity and belonging of the border peoples. His sterling efforts did not go unnoticed by the people. It was a teamwork. I did not imagine Bharat be getting such award. I enjoy working for the people, helping others, and I'll continue to help others work for the people as long as I did. Shri Techi Gubin, Koti Koti Naman. All right, sir. A big congratulations from our side also, sir. Sir, बताइए आप कहाँ से आते हैं, आपका चाइल्डहुड डेज कैसे रहा सर, वो थोड़ा ब्रीफली बताइए सर. मैं एक छोटा सा गांव केबी बस्ती से बिलोंग करता हूं, और मेरा बचपन का स्कूलिंग जो है याजाली, उस समय में प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से स्कूलिंग किया. और मेरा पिताजी ने मेरी माँ नहीं, माँ 4 साल का उम्र में गुजर गई. तो उसके बाद पिताजी ने मुझे बड़ा पालन पोषण किया. जब 6 साल का शायद हो गया, तब मुझे स्कूल लेके उन्होंने एडमिशन कराया याजाली स्कूल में. तो वहाँ से मैंने क्लास 10 पास किया. बाद में प्राइमरी के बाद में मिडिल सेकेंडरी हो गया. तो सेकेंडरी स्कूल का मैं फर्स्ट बैच. ओके जी. आगे सर उसके आगे आपका एजुकेशन कैसे? हाँ, उसके बाद मैं दोईमुख में चला गया. वहाँ से क्लास 2 किया. फिर कॉलेज चला गया आर्किटेक्चर पढ़ाई करने, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी में चला गया. तो वहाँ से डिग्री हासिल किया और
अरुणाचल वापस आ गया और PWD में नौकरी ज्वाइन किया। ये सर कौन से साल में आपने जो सर्विस पहला आपका रहा है? मैं वैसे कॉलेज जाने से पहले एक एग्ज़ाम दिया था मैंने जी। टीचर के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो वो एग्ज़ाम पास हो गया। तो कॉलेज जस्ट क्लास 12 एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और कॉलेज जाने में अभी कुछ महीना समय है। ओके। तो उतने में मैं टीचिंग का जॉब भी किया था। तो मैं सगाली एरिया में एक डिफंक्ट स्कूल जहाँ टीचर्स नहीं आया, तो वहाँ मुझे पोस्टिंग किया। वहाँ मैंने करीब 4 महीना पढ़ाया। अच्छा। पूरा साल भर का जो कोर्स बंद पड़ा था उसको मैं 4 महीना में कोर्स को कंप्लीट करा रहा हूँ। और 5 क्लास एक टीचर में अकेले नहीं, 5 क्लास को संभालना बहुत टफ था। और वो अभी वहाँ का पास आउट बच्चे अभी एक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर टीचर लेवल में आ गया है और बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर भी बन गया। ओके। जी, मेरा स्टूडेंट। ओके। तो 4 मंथ्स आपने टीचिंग का जॉब 4 मंथ्स में मैंने पूरा मैंने साल भर का सिलेबस को कंप्लीट करा दिया, एनुअल एग्जाम भी करा दिया। ओके, नाइस नाइस। उसके बाद फिर कॉलेज चला गया। कॉलेज में 1983 से 88 तक 5 इयर्स कोर्स होता है आर्किटेक्चर। तो 88 में कंप्लीट किया और ईटानगर में वापस आया, मतलब घर वापस आ गया। फिर ईटानगर चला गया। दिसंबर महीना में मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया एज असिस्टेंट आर्किटेक्ट। ओके। तब से 2024 तक सर्विस करीब 36 इयर्स मैंने सर्विस किया। वंडरफुल सर, वंडरफुल। मैं ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट आर्किटेक्ट। ओके। असिस्टेंट आर्किटेक्ट से प्रमोशन मिल के आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट बन के रिटायर हो गया। ओके ओके। आई मीन इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड यस सर, यस सर। और चीफ आर्किटेक्ट तो मैं स्पेशल थैंक्स तो फेमा हांडो सर को देना चाहूँगा जी। उनको भी मैंने मिल के बताया, सर आपने तो मुझे चीफ आर्किटेक्ट बना के भेज दिया मैंने रिटायरमेंट में। तो लास्ट मोमेंट चीफ आर्किटेक्ट मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया और वन वीक चीफ आर्किटेक्ट में बैठ के रिटायरमेंट में चला गया। तो मैं इसलिए बोलता हूँ माई रिटायरमेंट was a happy ending. All right. Very nice, sir. That is about your profession. Yeah. Other than that, sir, बात करते सर पद्मश्री अवार्ड जो भी आपको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है सर, ये कौन से कैटेगरी में मिला है सर? इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफली बताइए सर। पद्मश्री मुझे सोशल वर्क कैटेगरी में दिया है जी। तो मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैंने कभी सपने में भी देखा नहीं कोई अवार्ड के लिए। स्टेट में भी कोई भी अवार्ड के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। ओके। तो कैसे पता चला सर ऐसा अवार्ड मिला है, नाम गया है ऐसे कुछ? नाम गया है कुछ भी मालूम नहीं, किसी ने कभी बताया ही नहीं क्योंकि मैंने अप्लाई भी नहीं किया। किसी मुझे पूछा है दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री से, आपने अप्लाई किया था? मैंने कहा अप्लाई नहीं किया। ये कब की बात है सर? ये 25 तारीख की बात है। ओके। 25 जनवरी 2026। 25 जनवरी 2024 26 को मुझे होम मिनिस्ट्री दिल्ली से किसी ने फोन करके सुबह करीब 10-11 बजे ऑफिस खोलने के बाद में एक मैडम ने कॉल करके बताया, तेची गोविंद कांग्रेचुलेशंस, आपको पद्मश्री के लिए सिलेक्ट हो गया है आपका नाम। तो मैं विश्वास नहीं कर सका। मैडम, इज इट ट्रू? आर यू सीरियसली टेलिंग? विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, यस, इफ यू आर तेची गोविंद देन ये पद्मश्री इज फॉर यू। तो बोला है देन थैंक यू मैम, मैंने बोला। देन मैम बोला है तो आई एम टेलिंग यू नाउ बट डोंट डिस्क्लोज इट टू अदर्स today, no? Because tomorrow it will be announced. Your name will be announced tomorrow, 26 January. तो आपने किसी को बताया नहीं सर? तो मैंने किसी को भी बताया नहीं। ऐसे मैं सिर्फ तो फैमिली को भी नहीं बताया? नहीं, फैमिली को भी नहीं बताया। सिर्फ मैं खबर मिल गया मुझे, उतना मुझे मालूम था। लेकिन उसी दिन 25 तारीख को आफ्टरनून में मनोज सिंह
जो पीटीआई का रिपोर्टर है, जी जी उसने हमको कॉल करके गोविंद जी कॉन्ग्रेचुलेशंस पद्मश्री अवार्ड के लिए। तो मैंने उनको पूछा आपको कैसे पता चला? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, मैं तो पीटीआई का रिपोर्टर हूँ, मुझे मेरा तो होम मिनिस्ट्री में डायरेक्ट लिंक है, ऐसे बताया। ओके। तो तब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताने के लिए मना किया था आज का दिन में। तो उन्होंने बोला तब एक आप वीडियो क्लिप बनाइए, 1-1.5 मिनट का एक वीडियो क्लिप बना के भेज दीजिए। तो मैं जस्ट मतलब सूरज ढलने वाला था, शाम हो रहा था, एक वीडियो क्लिप बना के कि एक हमारा कार्यकर्ता है वहाँ का, वेस्ट बंगाल का ना, संगठन मंत्री, उनको बोला कि आप हमको वीडियो बना दीजिए और भेजना है। उनको बता दिया मेरा पद्मश्री सिलेक्शन हो गया, मेरा नाम। तो बना के भेज दिया। फिर मनोज सिंह उसी शाम को पूरा उसको वायरल कर दिया। अच्छा। तो मैंने सोचा अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैडम ने तो हमको मना किया था किसी को बताना नहीं है। हाँ। ऐसा तो ऐसे करके सबको पता चल गया, पता चल गया, उसी 25 को ही पता चल गया। जी जी कि वो वायरल हो गया ना, उन्होंने जो वीडियो क्लिप को वायरल कर दिया, मैंने तो उनको ही बना के भेज दिया था। तो सर आपने ये इन्फॉर्मेशन जो ये न्यूज़ जो है कि पद्मश्री के लिए आई हैव बीन नॉमिनेटेड, ये सबसे पहला किसके साथ शेयर किया एंड हाउ वाज द रिएक्शन? सबसे पहले तो क्योंकि मैं वहाँ प्रवास में था ना, अपना कार्यकर्ता को ही बताया, जो वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता, मैंने बताया। और मतलब वो भी नेक्स्ट मॉर्निंग उस दिन आप कुछ नहीं बोले? नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन 25 को तो जी 25 को तो वो संगठन मंत्री को मालूम हो गया जी, क्योंकि उसने हमको वीडियो बना दिया ना। हाँ। और नेक्स्ट डे तो 26 जनवरी, तो उसने पूरा असेंबली में, क्योंकि वो था छात्रावास था, हाँ। छात्रावास में बच्चों को अनाउंस करके बता दिया मेरे बारे में कि ये सर को पद्मश्री अवार्ड आज का दिन में अनाउंस हो रहा है, दिया जा रहा है। ओके बताया। और फ्लैग होस्टिंग मैंने किया वहाँ। वहाँ एक छात्रावास जो स्कूल है, साथ में स्कूल भी है और कन्या छात्रावास भी है। तो वहाँ उसी दिन का जो फ्लैग होस्टिंग मैंने कराया। ओके सर। एंड हाउ अबाउट फैमिली सर? फैमिली को कब पता चला और हाउ वाज द रिएक्शन? हाँ, फैमिली को भी तभी उसी दिन ही मैंने बताया जी। तो उन्होंने दे फैमिली बिलीव्ड में और भी उतना कोई एकदम एक्साइटमेंट तो नहीं। अच्छा। मुझे भी ज्यादा उतना एक्साइटमेंट तो नहीं था क्योंकि मैं तो काम कर रहा था कोई विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मैंने समाज सेवा तो कर रहा था जी। और मैं समाज सेवा तो स्कूल में पढ़ाई करते समय से मैं करते आया हूँ जी। मैं उसी में आने वाला था। हाँ। कब समाज सेवा का जो ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा समाज सेवा मैं स्कूल में, यजाली स्कूल में जब पढ़ रहा था, तो हम लोग पूरा यजाली एरिया या सराउंडिंग विलेजेस में सोशल सर्विस कराते थे। ओके। तो वहाँ हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन, तब दैट वाज ड्यूरिंग 1977-78, तो हम गांव वालों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी वो अवेयरनेस देते थे। ओके। तो पानी उठाने का जो, पहले तो नल का पानी नहीं था, वो पाइप वाला पानी नहीं था, हम लोग दूर जाके पानी को उठाना पड़ता था। तो पानी का जो सोर्स है, जो जहाँ से पानी उठाता है, बहुत गंदा होता है, उसको हम लोग बस्ती बस्ती जाके साफ कर देता था, बरा कर देता था। That was voluntarily okay. Voluntary service, माने students, and I was guiding the students because I was the general secretary of the school. Okay. तो मेरा लीडरशिप का समय में यजाली एरिया का सराउंडिंग विलेजेस में मैंने घूम के ऐसे सोशल सर्विस कराया। और एक बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में बस्ती हो रहा था, उनको भी मैंने सजेस्ट किया कि ये आप लोग का तो बहुत हार्डशिप है यहाँ रहना, बहुत हार्ड एरिया है, आप लोग, मैंने एक जगह दिखाया, वहाँ जाके एक प्लेन एरिया है, वहाँ आप लोग रीग्रुपिंग करके सेटल हो जाइए ना, बता के गया। उसके बाद तो मैं वापस जाके देखा नहीं, लेकिन अभी मुझे लोग बताते हैं जी, आपने बताया था रीग्रुपिंग के लिए, हम लोगों ने वहाँ बैठ गया
ओके। ऐसे बताता है, अभी लोग बताता है। तब मेरा रिकॉल होता है, रिकलेक्ट मैं तब करता हूँ, जी, मैंने जी। बताया था मीटिंग में, ऐसा होता है। तो वही मतलब सोशल सर्विस तब से करते आए। फिर जब नेहरू युवा केंद्र वगैरह का लगता था, उसमें भी सोशल सर्विस जी। का काम करता था। तो नेहरू युवा केंद्र का एक मैं जब कॉलेज से पास आउट हो गया ना, अगस्त में पास आउट हो गया, तब कुछ समय हमको मिलता था। तो एक लोड कोजी सर, अभी वो गुजर गए, वो कोऑर्डिनेटर था नेहरू युवा केंद्र। उन्होंने मुझे बोला, गोविंद, एक टीम को तुमको लेके जाना है हिमाचल में, एक टीम ऑफ 10 ना, एस्कॉर्ट करके लेके जाना है। तो मैंने हाँ बोल दिया। वो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में ना, मैं वो ले गया और हिमाचल में उनको ले गया एस्कॉर्ट करके। वो भी समाज सेवा। ओके ओके। सर हमने कहीं पे सुना था आपने गांव में नदी पार करवाया था, लाइक ऐसा कुछ कहानी सुना था सर, उसके बारे में। नदी क्या है वो, मतलब मेरा वो था, एक लोगों को मदद करने की इच्छा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो हम लोग का वो यजाली स्कूल का पास में एक बड़ी नदी है, रंगा नदी। ओके। वो रंगा नदी उस पार से बस्ती, वहां से आके नीचे वो है सस्पेंशन ब्रिज है। ओके। तो सस्पेंशन ब्रिज तक जाने के लिए लंबा रास्ता है। तो मैं बेम्बू का एक नाव बना के ऐसे खेलता था। तो खेलते खेलते कभी उस पार से आदमी इशारा करने से मैं उन लोगों को पार करा देता था। अच्छा। और कभी कभी ऐसे जब स्कूल छुट्टी होने से ना, मतलब फ्री टाइम रिसेस का समय में वहाँ नाव में जाके चलाता था। कोई वहाँ से अगर ऐसे पार करवाने के लिए बुलाएगा, इशारा करेगा तो पार करा दूंगा। तो मैं ऐसे लोगों को पार करा देता था। अच्छा, इन रिटर्न कुछ मिलता था? इन रिटर्न मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। फ्री सर्विस। ओके। मतलब ऐसे हेल्प करने में अच्छा लगता था? जी, अच्छा लगता था। ऑल राइट। क्योंकि उसमें मेरा हॉबी जैसा ना जी, पानी के में खेलना, नाव चलाना, बैम्बू का वो राफ्ट बना के ना, नाव बना के, ओके, ऐसा था। ओके। और स्कूल में रहते समय भी छुट्टी का दिन में संडे किसी का खेती में जाके काम कर देना और हमको खाना मिलने से हो गया और दारू अपो मिलने से हो गया। ऐसा या चुली में भी वेकेशन में मैं काम किया था फॉरेस्ट में ना, एक्चुअली फॉरेस्ट में काम किया था। उसमें संडे को छुट्टी मिलता था। संडे को छुट्टी मिलने से हम खबर ले लेता था कि कल संडे का दिन को किसी का खेती में काम होगा क्या, तो काम मिल जाता था। मतलब वही, मतलब बचपन से ही विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन यू हैव बीन हेल्पिंग उसमें भी किसी का खेती करा दिया। हमको हाजिरा मिलेगा ना, डेली वेजेस जो मिलेगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस हमको खाना मिलने से हो गया और पीने को अपो मिलने से हो गया, दारू। ऐसा था सर। ये हो गया आपका चाइल्डहुड मेमोरीज हो गया सर। नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट एज ए पद्मश्री अवार्डी सर। सर बोलते हैं कि जैसे ग्रेट रिकॉग्निशन कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। तो आपके लिए सर क्या है Padmasri? How do you define Padmasri for yourself? What is Padmasri award to you? मैं अभी समझने लगा हूँ, इट्स अ बिग अचीवमेंट जी। तो मैं लोगों को बताता हूँ, लोग हम बोलता है हमको, आप तो सेलिब्रिटी हो गया। वहाँ सुंदरबन में मैं जब था जंगल में ना, प्रवास में, अरे हम सेलिब्रिटी के साथ फोटो ले रहा है, तो ऐसा लोग बोलता है। तो लोग बोलता है, नहीं आप तो सेलिब्रिटी से भी बड़ा हो गया। तब लगता है अरे सच में कि मतलब इतना ऊपर में पहुंच गया। मैं इसलिए बोलता हूँ, मनोज सिंह जब मुझे इंटरव्यू ले रहा था, मैंने बोला भारत सरकार ने मुझे शिखर पे पहुंचा दिया। मैं तो कहाँ से कहाँ, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसा ना एक्सपेक्टेशन नहीं था।
तो एकदम से पद्मश्री अवार्ड देके हाँ, हाँ. तो अब मैं मतलब मुझे भी लगता है मैं बहुत एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी बन गया हूँ. Sir, before getting the Padma Shri award and after receiving the Padma Shri award, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस है सर? ऐसा आपको लगता है? क्या ऑब्जर्वेशन है सर? हाँ, बिफोर पद्मश्री तो आई वाज ए वेरी केयरफ्री, आई हैड वेरी केयरफ्री लाइफ. जी. अब भी लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर आ गया. जी जी जी. ओके. और मुझे जब विदाउट एक्सपेक्टेशन मुझे जब इतना बड़ा अवार्ड दिया है, हाँ. अब मुझे और सेवा करना है. और सेवा करना है. ये फीलिंग मुझे आ रहा है. ओके. सर, आपको ये अवार्ड कौन सी तारीख में मिला था सर? आप दिल्ली गए थे रिसीव कर? दिल्ली में हाँ, 25 मई. 25 मई. हाँ, 25 मई को दिया. उसमें सर उसका विजुअल्स हमने देखा था सर. जी. जैसे आपने एंट्री किया, जी. हमें देखने को मिला प्रधानमंत्री साहब थे, होम मिनिस्टर सर थे, ऑल द डिग्निटरीज, एंड द प्रेसिडेंट मैडम वाज आल्सो देयर, एंड आपको ऐसा सब नमस्ते कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं. श्री तेची गोबिंद समाज सेवा. सर, ये जो मोमेंट था, जी. हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस मोमेंट? It was a great moment. In fact, there was a rehearsal round. In the forenoon, there was a rehearsal round. जी. And we were told to do this namaste only Yes. 3 times. Okay. So not more than that. But there I could observe that they were even going to the PM and Home Minister and shaking hands. But we Right. like as told, na? Yeah, as we were told, we have tried to maintain. तो एक बार नाम बुलाने से खड़ा होके ऐसे नमस्ते करना, उसके बाद जाके फिर राष्ट्रपति जी को फेस करके एक बार नमस्ते करना, एक बार वो मेडल लगाने के बाद एक बार नमस्ते करना. एंड दैट वाज ए ग्रेट फीलिंग. सबको जब निकल रहा हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी हमको भी रेस्पॉन्ड कर रहे थे. दैट वाज ए दिस मोमेंट यू विल चेरिश फॉरएवर. वेरी क्लोज टू द डिग्निटरीज. मतलब और भी थे, शायद उप राष्ट्रपति भी थे. जी. तो ऑल दोज डिग्निटरीज, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग वेरी क्लोज टू देम. एंड जब राष्ट्रपति मैडम जी के पास जब खड़ा था, मैडम जी ने हमको बोला कांग्रेचुलेशन. जी. सबको बोला होगा, हाँ. लेकिन मुझे लगा कि मुझे ही सिर्फ बोला है क्या. Okay, sir. Then after you received the Padma Shri award, sir, फिर घर में बड़ा celebration हुआ. Also, sir, there was some criticism we could see in the media report also, sir. तो इससे जुड़े हुए मेरा एक सवाल है, sir. How do you deal with this criticism? ये आप इसको ऐसे चैलेंज लेते हैं या ऐसे अपॉर्चुनिटी लेते हैं? एक्चुअली क्या है, मुझे लोग जानते नहीं थे मैं क्या कर रहा हूँ. जी. ये जो पद्मश्री अवार्ड जो है, मेरा जो 26 साल का जो नतीजा है, सेवा करने का नतीजा है, लगातार 26 साल मैं कल्याण आश्रम अपना 26 साल नहीं 30 साल जैसा होगा, निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी में मैं प्रेसिडेंट रहा. फिर अरुणाचल विकास परिषद में भी प्रेसिडेंट रहा. जी. तो ये दोनों मिलाने से करीब 30 साल में ऐसे समाज सेवा किया हूँ. तो लोगों को मालूम नहीं मैं क्या करता था. अब मुझे जब अवार्ड लेके मैं आया हूँ, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो मुझे तो ये So it was a good medium for you. People came to know you better. तो मुझे लोग नहीं जानते थे, अभी लोगों को मालूम हो रहा है. एंड आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एज ए चैलेंज. ओके. ठीक है सर. ये जो अवार्ड मिला है सर, ये जो रिकॉग्निशन मिला है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे सर? इसका क्रेडिट तो मैं भारत सरकार को ही देना चाहूँगा. ओके. और मैं ज़्यादा समय सेवा जहाँ किया, कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, और यहाँ इस प्रांत में अरुणाचल विकास परिषद. मैं मतलब कहाँ से सिफारिश गया मालूम नहीं. जी. किसी ने तो हमको बताया नहीं, आपका नाम हमने वो कर दिया, सिफारिश दे दिया, रिकमेंड कर दिया. हाँ. तो
राज्य सरकार, ये कल्याण आश्रम जी, और फाइनली भारत सरकार। ऑलराइट जी। ऑलराइट, ठीक है सर, डिस्कशन को जारी करेंगे सर। जी। थोड़ा सा हम एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहते हैं सर। अच्छा, अच्छा। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ सर आपको, जी। आपको इसका वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर देना है सर। ठीक। आर यू रेडी सर? ओके, I'll try. माय फर्स्ट क्वेश्चन सर, Okay. अरुणाचल प्रदेश इन वन वर्ड। Arunachal Pradesh, earlier it was called NEFA, North East Frontier Agency. Okay. One value that has guided you your entire life. One value. Uh, the truthfulness and simplicity. Okay. Yeah. The person who has influenced you the most. सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया आपको? मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ही Okay. मानूंगा because the non-violence and the truthfulness Okay. of his life. One thing that makes you most proud of Arunachal Pradesh. Arunachal's, which makes Arunachal proud, I think it's Arunachal Pradesh 26 tribes, colorful tradition and culture. All right. Yeah. All right. A place in Arunachal that is very close to your heart. I would like to name Yajali because Yajali has been the place where Which is I a did my Kusum, yeah. schooling Right. up to class 10. 12 years I was there. Your favorite traditional food? I prefer boiled food. Yeah, with bamboo shoot. Okay. Yeah, boiled food means all leafy vegetables. Okay. Yeah. Next question, sir. Tradition or technology? ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आ गया, तो Both. बहुत आ गया है। That was a very diplomatic answer. Yeah. Last question, sir. जी। One dream for Arunachal in the next 25 years. 25 years तो बहुत होता है, तो next 25 years में I would like to see Arunachal developed Arunachal with a lot of infrastructure development, then a lot of flyovers. I could see at Nagpur and other places. Yes, yes. There are flyovers, above flyovers. So Yes. I would like to see Arunachal Itanagar also grow like that. Right, Yeah. right. So you want to see more development. Yeah, yeah. And Okay. and like they are in the pipeline. Trains also will go up to Tawang and then Right. Alo and all. Huh. So I would like to see all those developments in the next 25 years. Okay, so Padma Shri Techi Govind sir is very optimistic about the future of Arunachal. Yeah. Okay, sir. That was all about the rapid fire round, sir. We'll continue with the question, sir. Okay. आपने सर कल्चर के बारे में बहुत काम किया है regarding indigenous faith also, sir. जी जी. Now, sir, my question is regarding the indigenous faith, the understanding among the people, especially the young, the youth. इसके बारे में आपका क्या राय है, सर? लोगों को समझ में नहीं आता है. मैंने कहा in one of the podcast, my father during 60s, no, my father was an illiterate, a priest. He who did not have exposure to the outside world. He used to tell me we are Hindus. तो मुझे then I was wondering, वो पिताजी ने क्यों हम लोग हिंदू है बोला होगा. Then I could find out myself. वो हिंदू का मतलब उन्होंने इंडिजिनस को बोला होगा. Okay. So indigenous means we are the sons and daughters of the soil. Yeah. Okay. That is the indigenous, and the faith, our belief, we are nature worshippers. That is our faith. ओके Yeah. ओके सर, बातें तो हम बहुत करना चाहते हैं, जी। लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है सर. लास्ट में मेरा यही सवाल रहेगा सर, व्हाट इज योर मैसेज टू द कॉमन पीपल, द पब्लिक, स्पेशली द यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश? मैं सबको समाज सेवी बनो नहीं बोल सकता हूँ, सब तो समाज सेवी तो नहीं बन सकेगा, लेकिन उतना तो मैसेज मैं देना चाहूँगा. अच्छा नागरिक बने, देशभक्त बने, देश का सेवा करे, अपना अरुणाचल का सेवा करे. सभी वोट के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा. थैंक यू सो मच सर. Okay. हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इन सच ए शॉर्ट नोटिस आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन टुडे. एंड आशा करते सर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही समाज सेवा करते रहे, सो दैट अरुणाचल कैन फ्लोरिश मोर एंड मोर सर. जरूर. ऑलराइट, जाते जाते हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्हाट्सअप अरुणाचल, जहां हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यूज़, इश्यूज और इवेंट्स पर चर्चा करते हैं.
अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।